कब तक हम रहेंगे सर पटकते, अब वेदांतु देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। हाय किड, समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। बढ़िया टीचर्स प्रॉब्लम्स चुटकी में सुलझाएंगे, डाउट सारी जिंदगी से Raj, I got your doubt. This is your answer. समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो वेदांतु लर्न लाइव ऑनलाइन। This is something which I want you to do. I want you to show your love and support for We Biotonic. I want you to tell people about our channel. I want you to become ambassadors of education through We Biotonic. I want you to take ownership of the channel. Yes, so please do that. Spread the word. Tell people about our work. Tell people about our channel. Because we really need the support to be able to grow and become so big that कोई भी बच्चा कोई प्रॉब्लम में ना आए अगर उसको बायो समझ में नहीं आ रही है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका नाम है वेदांतु बायोटॉनिक टेलीग्राम ग्रुप। यू कैन एक्सेस इट बाय डाउनलोडिंग द टेलीग्राम ऐप एंड Vedantu_Biotonic करके just become a part of the Biotonic Telegram group, guys. It is a phenomenal group, and we promise through all the efforts that we are together putting in, we will make sure that you reach the Biotonic wall of fame. Before I move ahead, guys, I tell you in every class we have launched so many batches of crash course, and each batch of crash course has got full. And that's the reason we are remaking one more last batch of crash course which will start on the 27th of July and will continue right till your examinations. Full syllabus of 11th and 12th, complete revision. मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहती हूँ how do you do this process. तो आपको दिख रहा होगा नीचे लिखा है vdnt.in/NEET crash course. तो अगर आप चले जाएंगे vdnt.in/NEET crash course पे तो आपको नजर आएगा यार ये तो 4499 का है. So what you have to do is होता क्या है, there are live classes, test series होती हैं, recordings of the notes are available for you to study after the class, doubt solving by experts are there, strategies are there, teachers which are there who can teach you, who take your special lectures, all of this happens. तो अगर आप buy now पे जाएंगे, you just have to register through your email ID. तो अगर आप अपना email ID डालेंगे और register करेंगे देन आपका ये पेमेंट गेटवे खुलेगा। यहां पर आपको कोड डालना होता है VD NEET एंड करना होता है अप्लाई। देन यू विल स्ट्रेट अवे गेट अ 1500 ऑफ एंड द कोर्स विल बी ओनली फॉर 2999 जो यहां लिखा हुआ है। तो ये कोड है VD NEET और जाना है vdnt.in/NEETCC पे। डेली यू विल हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के ऑल्टरनेट सेशंस होते हैं 2 hours plus 2 hours every day, 4 hour sessions and Sunday tests, right? So do become a part of this and चलिए वेटेज इन नीट बायोटेक्नोलॉजी से 3 डायरेक्ट सिंपल इजी क्वेश्चन आएंगे. सो देयर आर 3 रियली सिंपल, रियली डायरेक्ट, really simple and really easy questions will come from here. Into 4 is equal to 12 marks in your jab or pocket. So make sure that you become a part of our super amazing crash course. चलिए, so let's come to applications of biotechnology, which is today's class. Applications जितने भी हैं, principles हैं, processes हैं, सारे के सारे मैं डिटेल में आपके साथ आज की क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ. Pay attention, enjoy, listen, मजेदार क्लास होने वाली है. चलो, so applications of biotechnology, क्या क्या applications हैं? सबसे पहले शुरू करते हैं डायग्नोस्टिक्स. सबसे पहले डायग्नोस्टिक्स, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से मैं एंटीबॉडी बना सकती हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, ध्यान से सुनो, एक एक चीज समझाती हूँ. मान लो किसी की बॉडी में एंटीजन है, फॉरेन बॉडी है, इस एंटीजन को आप कैसे पकड़ोगे? सो किसी की बॉडी में एक एंटीजन और एक फॉरेन बॉडी है, इस एंटीजन को आप कैसे पकड़ोगे? इस एंटीजन को आप एंटीबॉडी भेज के पकड़ सकते हो. कैसे पकड़ सकते हो? एंटीबॉडी. अब ये एंटीबॉडी कहां से मंगाओगे? फ्रॉम वेयर आर यू गोइंग टू गेट द एंटीबॉडी टू होल्ड द एंटीजन? जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिजा टेस्ट, और इट इज बेसिकली, एलिजा को भी छोड़ो, एलिजा तो एक स्पेसिफिक टाइप का टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड अ एग्लूटिनेशन टेस्ट. तो जब भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं, वी कॉल इट अ एग्लूटिनेशन टेस्ट. दैट मीन्स दिस इज द एंटीजन, दिस इज द एंटीबॉडी, एंड दे आर मीटिंग ईच अदर. इट इज कॉल्ड अ एग्लूटिनेशन टेस्ट.
मान लो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, हम सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी को एड्स है, सो उस पर्सन की बॉडी में एंटीजन तो है ही, देयर इज एंटीजन। अगर मैंने बाहर से एंटीबॉडी डाल दी, दैट एंटीबॉडी विल होल्ड द एंटीजन। अंडरस्टैंड, इतनी डेलिबरेटली सिंपली आपको एक एक चीज समझाई जा रही है, दैट एंटीबॉडी विल होल्ड द एंटीजन एंड एग्लूटिनेशन विल टेक प्लेस। सो इन योर डायग्नोस्टिक्स इट इन्वॉल्व्स, yes, it involves the process of testing of suspected genetic defects before administering treatment through PCR, ELISA, prenatal diagnostic screening। तो मान लो आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि किसी बच्चे को कोई पहले बचपन से ही बीमारी है, तो आप एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हो, राइट? बहुत सारे PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे एड्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। अगर मैं सस्पेक्ट कर रही हूं किसी को एड्स है, तो जब मैं उसकी बॉडी में एंटीबॉडी डालूंगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। आ जाइए एग्रीकल्चर पे। क्रॉप्स टॉलरेट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, राइट? एबायोटिक स्ट्रेसेस। सो क्रॉप्स बनाती हूं, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल के अलावा और बहुत क्रॉप्स बनाती हूं विच आर टॉलरेंट टू एबायोटिक, नॉट लाइफ, नॉट वर्म्स, नॉट कीड़ा मकोड़ा। एबायोटिक स्ट्रेस लाइक कोल्ड, ठंड में सर्वाइव कर जाते हैं, ड्रॉट में सर्वाइव कर जाते हैं, सॉल्ट में सर्वाइव कर जाते हैं, हीट में सर्वाइव कर जाते हैं। सो दिस इज गोइंग टू डिक्रीज दी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। हार्वेस्ट के बाद के लॉस नहीं होने देंगे। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाऊंगी मैं बाय मेकिंग बीटी कॉटन, बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस कॉटन, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, लेपिडोपिटेरन, जो भी फैमिली के कीड़े हैं वो इनको खा नहीं पाएंगे। न्यूट्रिशनल क्वालिटीज बढ़ा दूंगी। आई विल मेक बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स, विटामिन ए एनरिच्ड राइस, right everybody? Production of vaccines, improved taste, texture and appearance of food. Vaccines बनाएंगे। All of this and much more is done through biotechnology in agriculture. Very important, डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। मेडिसिन, वैक्सीन्स बनाऊंगी, एंटीबायोटिक्स बनाऊंगी, जीन थेरेपी। मान लो मुझे पता चलता है कि कोई जाइगोट है और उस जाइगोट में उस बच्चे को कोई बहुत खतरनाक बीमारी है, तो मैं उसको जाइगोटिक स्टेज में ही जीन थेरेपी दे दूंगी। जो गलत जीन है वो निकाल दूंगी और उसकी जगह जो ठीक जीन है वो डाल दूंगी। दिस इज कॉल्ड एज जीन therapy. Genetically engineered hormones and proteins such as insulin, factor 8 for hemophilia, all of this I do in medicine. Is that clear? मेडिसिन में हीमोफीलिया के लिए फैक्टर्स बनते हैं, एंटी थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, ये जितने भी 1 से 13 फैक्टर्स हैं, किसी के शरीर में भी कम हो सकते हैं। आई मेक देम जेनेटिकली engineered factors. Okay? Transgenic animals. Look at the cute little pig there with the yellow nosy. So normal physiology and development पढ़ेंगे। Transgenic animals में सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है रोजी का। रोजी इज अ काउ जिसको ह्यूमन लैक्ट एल्ब्यूमिन की जीन मैंने इंसर्ट कर दी है। व्हाट डज ह्यूमन लैक्ट एल्ब्यूमिन जीन डू? कई मदर्स कैन नॉट लैक्टेट एंड सम मदर्स इवन डाई ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, तो इनके बच्चों को ह्यूमन मिल्क नहीं मिलता है। सो इन दीज किड्स ह्यूमन लैक्ट एल्ब्यूमिन की जो जीन है ह्यूमन लैक्टोस वाली, वो रोजी के अंदर डाल दिए, तो रोजी विल गिव ह्यूमन मिल्क विच आई कैन गिव टू देम। करेक्ट? वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, ये बहुत गलत बात है, बट वैक्सीन को बेचारे एनिमल्स पे, दीज आर एनिमल टेस्टिंग्स, राइट? टॉक्सिसिटी कोई चीज में है या नहीं है, कॉस्मेटिक्स की टेस्टिंग, सेफ्टी टेस्टिंग, ये सब एनिमल्स में की जाती है। बायो रिमीडिएशन, आपको पता है राजस्थान में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर सी वाटर अंदर आ गया है, तो क्योंकि सी वाटर अंदर आ गया है, दैट इज व्हाई दोज एरियाज हैव बिकम वेरी सॉल्टी। उन एरियाज पे अभी हम बिल्कुल भी क्रॉप या एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। सो इन बायो रिमीडिएशन यू टेंड टू क्लेम बैक दोज एरियाज, राइट? रिमूवल ऑफ कंटैमिनेंट फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। अगर सॉइल में एक्सेसिव सॉल्ट है, ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो क्रॉप्स देयर। दैट इज रीमीडिएशन। मीडिएट मतलब बीच में पड़ना, रीमीडिएशन बीच में पड़ के जो टॉक्सिक चीजें आपने उनको निकाल दी हैं, राइट? माइक्रोब्स निकाल दिए हैं, करेक्ट? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रोब्स हम डालते हैं जो डाइजेस्ट कर देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। आपने सूडोमोनास प्यूटिडा के बारे में सुना है?
राइट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। सूडोमोनास प्यूटिडा, ये ऑयल स्पिल्स वाली जगह से ऑयल ले लेता है, इट टेक्स द ऑयल फ्रॉम द ऑयल स्पिल एरियाज। सो योर एमसीक्यू कैन कम ऑन मेडिसिन। एससीआईडी के लिए मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी जीन थेरेपी। रोजी पे क्वेश्चन आ सकता है, विटामिन ए इनरिच्ड राइस बायो फोर्टिफिकेशन पे एमसीक्यू आ सकता है, एलिजा पे एमसीक्यू आ सकता है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। इज दैट क्लियर? एंटीबॉडीज बना रहे हैं हम। वेस्ट ट्रीटमेंट, सो वेस्ट ट्रीटमेंट में हम एरोबिक एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स डालते हैं, फ्लॉक्स बनाते हैं फॉर प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में डिटेल में कराऊंगी। ये फ्लॉक्स डाल देते हैं हम सीवेज में, जिस सीवेज को हमने ट्रीट करना है, so that all the waste material or the undigested waste can be treated। अगर undigested waste वाला सीवेज आप पानी में डाल दोगे, वैसे तो पानी में डालना इंट्रोडक्शन इन वाटर इज ऑलवेज रॉन्ग, पर अगर undigested वाला पानी में डाल दोगे तो वो सारे का सारा वाटर फ्रॉम द वाटर से सारा ऑक्सीजन ले लेगा एंड यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, बिकॉज ऑफ विच द एनिमल्स विल डाई। राइट, एरोबिक एनारोबिक ट्रीटमेंट, बायोगैस रिएक्टर्स में हम इनको यूज करते हैं। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का चार्ट नंबर 1। कूल, चलिए, so ऐसे में आपको सारे चार्ट्स कराऊंगे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है वी विल डू इट इन डिटेल। सबसे पहले आते हैं एग्रीकल्चर में। देखो, ये तो हमने यहां पे एक चार्ट में पढ़ा, अब हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर, ये देखिए बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस डिटेल में, मेडिसिन, इंजीनियर्ड इंसुलिन पढ़ाऊंगे। ऑसम, स्लाइड्स तो देखो कितनी कमाल की हैं, देखिए डन। ये सारा एससीआईडी वगैरह, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में आपको डिटेल में कराऊंगी, डायग्नोस्टिक्स में आपको डिटेल में कराऊंगी। सो चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम हर एक चीज को डिटेल में करते हैं। सो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, रेजिस्टेंस टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, जैसा कि हमने अभी देखा, राइट। एबायोटिक स्ट्रेसेस, लिविंग स्ट्रेस नहीं, नॉन लिविंग, टेम्परेचर, विंड, क्लाइमेट, वाटर। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स मैंने बनाए, मेरे पास समथिंग इज कॉल्ड बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस। इस बैक्टीरिया में एक जीन होती है जिस जीन का नाम है क्राइजीन। क्या नाम है इस जीन का? क्राइजीन। क्राई1 ए बी 2 ए सी। क्राइजीन जो है वो लेपिडोपेट्रन्स में या मॉथ्स में, बटरफ्लाइज में, कैटरपिलर्स में जब वो सलाइवा से मिक्स होती है, सलाइवा से जब वो मिक्स हो जाती है तो वो अल्कलाइन बन जाती है, राइट। अल्कलाइन सलाइवा से, और वो अर्थवर्म जो नॉट स्नेल्स, अर्थवर्म्स जो रेंगते हैं स्नेल्स अर्थवर्म्स की तरह, कैटरपिलर्स, राइट। तो कैटरपिलर के मुंह में जाकर, कैटरपिलर के मुंह में क्राइजीन एक्टिव हो जाती है और उसके पेट के सेल्स को बर्स्ट कर देती है। सो व्हाट हैपेंस इज, आप क्या करते हो, I will erase this and I will write it again for you. This is where I will explain it. Yes, तो आप क्या करोगे, ये जो क्रिस्टल है स्पोर, ये आप जैसे पत्ते में हमने डाल दिया, दैट मीन्स पत्ते में मैंने बीटी डाल दिया। बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस की क्राइजीन को मैंने लीफ के अंदर डाल दिया। जैसे कैटरपिलर ने इसको खाया, ये जाकर, ये प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है, एंडोटॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन। जैसे इसको खाया, ये एक्टिव हो गया, इट एक्टिवेट्स इन द अल्कलाइन पीएच, सलाइवा से मिक्स होकर ये एक्टिवेट हो गया। व्हाट हैपेंड? एक्टिवेट, सलाइवा से मिक्स होकर ये एक्टिवेट हो गया। इज दैट क्लियर? और जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ, इसने जाके सेल्स में छेद कर दिए और जो कैटरपिलर के गट के सेल्स हैं वो बर्स्ट हो गए, और कैटरपिलर के, ये देखो, ये टॉक्सिन्स बाइंड टू गट रिसेप्टर्स, गट ऑफ द कैटरपिलर, देखो टॉक्सिन्स, और देख रहे बीच में छेद हो गया, गट परफोरेटेड। इट्स अ ब्यूटिफुल स्लाइड, आई विल टेल यू अगेन। सो बीटी खाया, बीटी हमने लिया, बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस में क्राइजीन होती है, क्राइजीन हमने पत्ते के अंदर डाल दी। जैसे ही कैटरपिलर ने क्राइजीन ली, अल्कलाइन पीएच में प्रोटॉक्सिन से टॉक्सिन बन गया, टॉक्सिन ने जाकर एपिथेलियम में छेद कर दिया ऑफ द गट ऑफ द कैटरपिलर, एंड छेद होने की वजह से गट मेम्ब्रेन परफोरेशन हो गई और कैटरपिलर की डेथ हो जाएगी। दीज आर पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स जो मैंने बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस से बनाए हैं। इंक्रीज न्यूट्रिशनल वेराइटी, मैंने क्या किया, आई टुक अ येलो कलर प्रोडक्ट कॉल्ड कैरोटीन, एंड ये येलो कलर प्रोडक्ट को मैंने राइस में डाल दिया, विच इज कॉल्ड द गोल्डन राइस। इट इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन ए, इट इज कॉल्ड एज बायो फोर्टिफिकेशन। अब विटामिन ए मुझे खूब सारा
विटामिन ए मिलेगा गोल्डन राइस खाकर, एंड इट विल हेल्प मी गेट रिड ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। वैक्सीन्स बनाएंगे और अपीयरेंस ऑफ फूड को भी बेटर करेंगे। बीटी टॉक्सिन बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस से आती है। इट इज यूज्ड टू किल द पेस्ट दैट इज कैटरपिलर। टोबैको प्लांट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री इस पे डेवलप वो रखी है। सो मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा एक वर्म है जो इसकी रूट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैं टोबैको प्लांट के पास आरएनए डाल देती हूं और ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जो मेलिडोकाइनी इनकॉग्निटा के सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बाइंड कर जाएगा। आरएनए डबल स्ट्रैंड हो जाएगा मेलिडोकाइनी इनकॉग्निटा में, जिसकी वजह से आरएनए प्रोटीन नहीं बना सकता। आरएनए हैज टू बी सिंगल स्ट्रैंडेड ताकि ऊपर टीआरएनए लगे। अगर मैंने आरएनए को डबल स्ट्रैंड कर दिया, ऊपर टीआरएनए अटैच नहीं होंगे और काम नहीं होगा। सो आई इंटरफियर विद the RNA of melindocaine incognita, which is called as RNA interference. इसको हम जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं। लिखो इसको, it's very important. Come on, click a snapshot by the time I'm having a glass of water. Come on, quickly click a snapshot. Yes everybody. So melindocaine incognita का RNA मैंने साइलेंस कर दिया, which is called as RNA interference और जीन साइलेंसिंग। स्ट्रैंडेड बना दिया। Is that clear? So जब आप RNA को डबल स्ट्रैंडेड बना दोगे, that is the time when you will make the RNA। तो वो काम कैसे करेगा? RNA तो तभी काम करेगा अगर ऊपर कोई tRNA अटैच हो रहा है। RNA को आपने डबल स्ट्रैंडेड बना दिया, वो काम नहीं करेगा। डन। मूविंग अहेड। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। डू वी मेक इंसुलिन? डू वी मेक आर्टिफिशियल इंसुलिन? यस, जिसको हम ह्यूमुलिन बनाते हैं। ईस्ट हमारे लिए बनाती है, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन। पहले हम क्या करते थे? शीप की इंसुलिन देते थे, काफ की इंसुलिन देते थे, उससे ह्यूमन बींग्स को रिएक्शन होते थे। बट नाउ एली लिली कॉर्पोरेशन ने यूएस में सबसे पहले स्टार्ट किया था। एली लिली कॉर्पोरेशन इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन। Eli Lilly Corporation is a very important MCQ question. So Eli Lilly Corporation ने modify insulin start किया. Humulin is used to treat diabetes. What is that to you treat diabetes? Humulin, human insulin. Human insulin is called as Humulin. Is that clear? Very very important. सबसे पहले बैंटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन का स्ट्रक्चर निकाला। A, B और C होता है। C जो है वो प्रो इंसुलिन में होता है, उसको हम हटा देते हैं। तो A, B होता है, C को हमने हटा दिया, A और B को ज्वाइन कर दिया, इंसुलिन बन गई। जीन थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट जेनेटिक डिजीजेस बाय रिप्लेसिंग द नॉन फंक्शनल जीन। एक डिजीज है सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब इम्यून सिस्टम बहुत खराब हो चुका है, बिल्कुल भी काम नहीं करता। दैट इज हैपनिंग बिकॉज डेफिशिएंसी हो जाती है ऑफ एडिनोसिन डीअमाइनेज। एडीए की डेफिशिएंसी हो गई। तो जब आपके पास एडीए की डेफिशिएंसी हो गई, उसको हम सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी कहते हैं। हम एडीए की जीन लेते हैं और एडीए की जीन ह्यूमन बीइंग में इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एससीआईडी ट्रीट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी। वैक्सीन हमने प्रोड्यूस किए। पहले वैक्सीन हम ऐसे लगाते थे जिसमें हम लाइव वायरस डालते थे। सेबिन वायरस वाज अ वैक्सीन फॉर सेबिन। वैक्सीन वाज अ लाइव वैक्सीन फॉर पोलियो। काफी लोगों को इससे रिएक्शन हो जाता था, बट अब हमने क्या करना शुरू किया? अब हम सारे जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन बना रहे हैं विच आर वेरी सेफ। दे आर मेड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। इनमें कोई भी बीमारी होने का या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होने का चांस नहीं होता है। सो आई मेड इंसुलिन। सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी के लिए मैंने एडेनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम बनाई एंड आई एम एबल टू मेक वेरी सेफ वैक्सीन्स। चलिए, सो लेट्स मूव अहेड। सो कैन यू सी मैं क्या करूंगी? मैं इंसुलिन की जीन निकालूंगी। इंसुलिन ए जीन ये है, इंसुलिन की बी जीन ये है, डालूंगी राइट, और ए जीन का प्रोटीन बन गया, बी जीन का प्रोटीन बन गया, इकोलाई ने बना दिया, क्योंकि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होगी, उससे आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन। इन दोनों को लूंगी, प्यूरिफाई करूंगी और फ्यूज कर दूंगी। दोनों एक साथ नहीं डाल रही हूं। इंसुलिन जो है ह्यूमन इंसुलिन, उसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ए, बी और सी। जब तीनों पार्ट्स हैं उसको प्रो इंसुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रो
इंसुलिन। जब मैं सिर्फ ए और बी लेती हूं तो मैं उसको फाइनल इंसुलिन कहती हूं। व्हाट डू आई कॉल इट? आई कॉल इट द फाइनल इंसुलिन। इसमें सी पार्ट नहीं होता है। सो मैं ए की जीन ली, एक में डाली, कैन यू सी दैट? ए, यस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये तो पूरा आपका वही है, ORI, राइट? बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा चुकी हूं आपको पहले, करेक्ट? प्लास्मिड आपका बी की जीन ली, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, ए और बी की जीन ऐड कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और मेरा एक्टिव इंसुलिन ए और बी वाला बनकर तैयार हो गया। ए और बी को लिया, ज्वाइन किया, एक्टिव इंसुलिन, आई हैव बीन एबल टू मेक इट। बैक्टीरिया में मैंने एडीए की जीन ले ली। अगर एडीए की डेफिशिएंसी होगी, एडिनोसिन डीअमाइनेज की अगर डेफिशिएंसी होगी, तो सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा, राइट? तो रेट्रोवायरस लिया पर उसको डिसेबल कर दिया, मतलब वो कोई भी बीमारी या कुछ भी कॉज नहीं कर सकता। ये सेल लिए, टी सेल्स विद डिसेबल्ड एडीए जीन लिए पेशेंट से। जिस बच्चे का जन्म हो चुका है जिसमें एडीए की डेफिशिएंसी है, एडिनोसिन डीअमाइनेज की, इस बच्चे से मैंने टी सेल निकाले, राइट? टी सेल के अंदर एडीए बनाने की जीन डाल दी, देखो, और अभी ये स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स, राइट? और मैंने इनको ग्रो करके इस बच्चे को रीइम्प्लांट इसके बोन मैरो में कर दिया। कैन यू सी? ये एम्प्टी है, दिख रहे पिंक कलर के एम्प्टी, इनमें एडीए बनाने की जीन नहीं है। We don't have the gene to make ADA. मैंने ब्लू कलर की जीन इनमें डाली, they can make ADA and I've inserted them inside. So simple. चलो आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसजेनिक एनिमल्स में क्या करता है? कम ऑन, क्लिक अ स्नैपशॉट, बहुत इजी है, फिर मैं पढ़ाना शुरू करती हूं। जल्दी से एक स्नैपशॉट ले लीजिए। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में मैं बेसिकली इनको पता है कहाँ यूज करती हूँ? आई बेसिकली यूज देम इन रिसर्च। दैट मीन्स कॉस्मेटिक रिसर्च, वैक्सीन रिसर्च, टॉक्सिन रिसर्च। पहले ह्यूमन बींग्स को देने से पहले वी ऑलवेज ऐड देम इनटू द एनिमल्स, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स है, एंड देन वी गिव देम टू समबडी एल्स। स्टडी ऑफ डिजीज, हम बेचारे किसी भी एनिमल को डिजीज करा देते हैं, राइट? Mouse embryo stem cells genetically engineered to disrupt gene. Blastocyst transfer into uterus of host female. Mouse containing a mixture of genetically engineered cells and inner cell mass. राइट? दो अलग अलग जाइगोट मिक्स कर दिए, इसके अंदर कुछ भी मिक्स कर दिया, तो बेचारे माउस के अंदर इंसर्ट करके देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि उसके पास क्या फर्क पड़ रहा है। कैंसर रिसर्च में ऑस्टियोब्लास्टोमा, एनी सार्कोमा, एनी कार्सिनोमा, एनी लिम्फोमा, हॉजकिंस, नॉन हॉजकिंस टाइप, ऑल ऑफ दीज द सेल्स आर इंसर्टेड इनटू द माउस एंड इट इज फाउंड आउट इनमें क्या हो रहा है, राइट? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, कि जीन्स जब इनमें इंसर्ट कर रहे हैं क्या हो रहा है। वैक्सीन टेस्टिंग, कीमोथेरेपी, कैंसर रिसर्च, एम्ब्रियो ट्रांसफर, स्टेम सेल्स प्रोड्यूस हो पा रहे या नहीं, कोई दवाई काम कर रही है या नहीं, जीन्स काम कर रही है, वैक्सीन डेवलप करना, ये सारी चीजें मैं माउस में करती हूं। ट्रांसजेनिक माइस एंड मंकी आर यूज्ड टू चेक सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। इज दैट क्लियर? पोलियो है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स देते ही पोलियो हो जाए, तो बेचारे चूहे पे करके देखेंगे पहले, राइट? मैंने आपको रोजी के बारे में बताया था। रोजी ह्यूमन लैक्ट एल्ब्यूमिन की जीन मैंने एक काओ में डाल दी। फैक्टर 8 की जीन, ह्यूमन प्रोटीन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एम्फाइसीमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर इन द लंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो इसकी जीन्स मैंने किसके अंदर डाल के दे दी? आई हैव मैन्युफैक्चर्ड दीज जीन्स आर्टिफिशियली एंड देन आई हैव इंसर्टेड देम इनटू ह्यूमंस। तो बेचारे एनिमल्स से हम बहुत चीजें हार्वेस्ट करते हैं। अब आ जाओ आप डायग्नोस्टिक्स में। डायग्नोस्टिक्स में भी हम बहुत फायदा उठाते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, राइट? सो व्हेन आई हैव टू डायग्नोज समथिंग, पीसीआर, मैंने किसी क्राइम वाले एरिया से छोटा सा डीएनए लिया, क्राइम वाला एरिया था, क्रिमिनल बेस्ड एरिया, छोटा सा डीएनए लिया। इस छोटे से डीएनए को एम्पलीफाई करना, इंक्रीज करना, सो दैट मैं एक टेस्ट, पूरे टेस्ट करके पता लगा सकूं क्रिमिनल कौन है, इज कॉल्ड योर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। टू एम्पलीफाई डीएनए, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डीएनए,
जेनेटिक डिजीज है या नहीं है, डिटेक्ट इन्फेक्शन, HIV है या नहीं, एलिजा, राइट। वैसे भी HIV का वायरस बहुत छोटा है, अगर मैंने एंटीजन डिटेक्शन भी करना है, अगर मुझे वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी करना है, एटलीस्ट मेरे पास वायरल लोड तो होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वायरल लोड? मेरे पास थोड़े जीन्स तो होने चाहिए, मुझे पता तो चलना चाहिए कि यार ये डिजीज है, इसको ये डिजीज है, तो मेरे पास इतना सा DNA तो होना चाहिए टेस्ट करने के लिए। सो आई एम्प्लीफाइड। इज दैट क्लियर? राइट एवरीबडी। डिटेक्टिंग एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी, जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज एलिजा, ये एड्स में होता है। तो अगर किसी की बॉडी में एंटीजन है, इफ समबडी हैज एंटीजन, इफ यू पुट द एंटीबॉडी ऑन टॉप, द एंटीजन एंड एंटीबॉडी विल मिक्स, दैट्स कॉल्ड योर एलिजा, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्टिंग। राइट नाउ DNA फिंगरप्रिंटिंग, VNTR आपने सुना है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, VNTR, a technique using X-ray film to visualize molecules or fragments from molecules that have been radioactive. Radioactive probes I make. I will do in fact a special class on DNA fingerprinting. मेरा VNTR AUG है, तो मैं UAC बनाऊंगी और UAC को रेडियोएक्टिव लगाऊंगी ताकि AUG के ऊपर UAC चिपक जाए and this becomes radiolucent. Is that clear? तो ये probe बनाना. What is probe? Complementary pair. If I have AUG here, probe has to be UAC. If I have UU here, probe has to be AA. Complementary banana is autoradiography. Autoradiography. ये सब करना is all because of this. Is that clear? देखो, this is your polymerase chain reaction. सबसे पहले आप DNA को सेपरेट करोगे, राइट, फिर आप ऐड करना शुरू करोगे। देखो अनीलिंग, yes it has to be the RNA base, फिर आप एक्सटेंशन करोगे और यहां पे एक एंजाइम यूज करते हैं हम जो थर्मोफिलस एक्विटिकस से ली गई है, जिसको हम टैक पॉलीमरेज कहते हैं। सो दैट एंटायर थिंग हैपेंस ऑन PCR, राइट। तो ऑटो रेडियोग्राफी ऑल्सो, ऑटो रेडियोग्राफी आपने जो भी चीज ली है उसका रेडियो एक्टिव प्रोब बनाते हो सो दैट इट यू नो वेयर इज द थिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी हम ऑटो रेडियोग्राफी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। Oh, that's it. That brings us to the end of this super amazing, super cool, super sweet, super small, super pyara lecture on applications of biotechnology. Guys, I'm going to miss you at 11:30 and 3 o'clock, but tomorrow I will take super duper bumper, super cool lectures. Stay in touch, stay active on the community page, stay active on the Telegram group. Make sure you like, share and subscribe to our amazing channel. Guys, do it. Thank you so much. Join our Telegram group, join the crash course, VDCC, get the app. जहां रहो, खुशहाल रहो, आबाद रहो. May God take care of you, your family members, and just keep studying. Lots of love. This is Dr. Vani signing off on behalf of Vedantu. Bye, kids.